Okay, so we're going to study chapter 1 today, or I have I've chosen almost all the pages to show you. Maybe I'll not go into detail for all of them, but I'll try to cover whatever I think is really confusing for you. So, as we start the chapter, you can see that they introduce you to the Coulomb's law, and it's very pretty simple. It's just the relation between any two charges, any two given charges at any given space. Okay, first, a few fundamentals. मैं just आपको एक कोई brief सा उनका introduction देना चाहूँगा. That in any free space, these laws are applied, right? So these laws are applicable in any given space. ये बहुत important बात होती है. Because if you confine some spaces, then obviously some other factors are involved. If you have some external restrictions, then the laws are modified accordingly. But in any given free space without any restrictions or external factors, ये law as it is apply होता है. So first, we see that these laws are applicable on any two given charges, and it's very simple that you need the magnitude of the two charges. Okay, let me use someone. You need the magnitude of the two charges. You need the vector radius, vector the distance between them. The distance denoted by r here. R is used because it's used between it's the distance between their centers. Okay, so you have this. You have to remember that it is a distance between their centers, and then you have constants for pi, and this is the one of the variables you have here, which is like it is specific for and every specific space you are in or medium you are in, you could say. So these it varies according to the medium, and it will stay same no matter what you do as long as you stay within that medium. uh, and it's very simple, there is nothing to it. It's just जैसे न्यूटन्स के लॉज हैं, इसी तरह ये कॉलम का बिल्कुल उसी के एक तरह का कह लें चार्जेस के लिए लॉ है. If you remember, it's just there is the same law like this for heavier objects as well, but it does not have this permittivity etc. ये क्योंकि हम इतने स्मॉल स्केल पे आ गए हैं कि हमें ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि स्पेसिफिक टू एवरी सिंगल मटेरियल यू आर इन. तो एज आई सेड विद whatever space you are in, these it is changed accordingly, the permittivity of free space. Okay, next we have okay next we have the field force. Okay, so electric field force is it's pretty simple. Like every electrical charge that exists on a free space, okay, so it वो एक तरह का अपना असर दिखाता है अपने इर्द गिर्द. Okay, it tries to show its presence in specific ways. अब वो जो उसकी specific properties है ना, उनको हम थोड़ा सा study करेंगे. बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा introduction है उसके बारे में, that you have the electric field force sign, and then you have the force which is being observed at any given point or from any given distance. Like वो जिस space में आप उस charge के साथ deal कर रहे हैं, उसमें at a specific distance you will observe a specific force on a body, जिस चीज़ से आप measure करना चाह रहे हैं effect. चाहे आप खुद अपने आप को प्लेस कर लें, आप obviously अपने आप को measure तो नहीं कर सकते ना कि आपके ऊपर क्या. तो you need to place something जिस पे आप चार्ज measure कर सकें कि यार अच्छा क्या असर आ रहा है उस दूसरे चार्ज का. So uh, when you place some measurable object जो कि चार्ज ही मोस्टली यूज होता है, so when you place a charge, you can see its effect, and this is the magnitude of that charge. Okay, and again the force being applied, this force is being given by this formula. जो आप अभी पीछे column force का पढ़ के आएंगे. So here nothing's really difficult. So they're trying to show you that this electric field force is given by this formula. ये उसका
uh, what could you say? It represents the effect of the electric field force. Okay, this formula represents, and yeah, that's it. Okay, we'll go to the. Okay, then you have the electric field lines. Yeah, so basically in any given electric field force, like electric field जो electric field basically एक एक बार्न की तरह है, जहां पे आप जैसे आपने कभी देखो कैटल होता है ना, उसके इर्द गिर्द आप एक रेस्ट्रिक्टिव मैयर लगा देते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जिससे वो बाहर ना जा सके, कोई रेस्ट्रिक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं हेयर। ये एक वर्चुअल रिस्ट्रिक्शन होती है जो कि जस्ट गिवन बाय नेचर है, ये जस्ट इट्स बाय नेचर के जो एक गिवन चार्ज है वो अपना अफेक्ट एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही शो कर सकता है, आफ्टर दैट इट बिकम नलिफाइड। देयर इज एज यू गो farther and farther from its center, the effects reduces up to a point where it vanishes, जहां उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। सो ये बेसिकली उस इस जो मैंने अभी आपको बात बताई है इसको शो करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज they are trying to imagine virtual lines, right? They're trying to imagine virtual lines to see its effect. One thing very interesting is when you have the same charges, so at their extreme, when they're extremely close, they repel each other. Okay, even when they're farther, they repel each other. But when they're so close as it's shown right now, this one, what happens is like they go their separate ways. They 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 evade each other, totally evade each other, because it is impossible for them to collide, because they are the same charges, and it's impossible in nature. Vice versa, if you have opposite charges, they immediately find way to each other. Even when they're so far, they will always come back to the other opposite charge. Okay, this is just I'm showing in the conventional way, otherwise it doesn't happen like this. uh, and these patterns are created due to this property कि जो सेम चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, चाहे वो जितने ही करीब और दूर क्यों ना चले जाए। दूर वालों के लिए अवॉइड करना आसान है, दे विल जस्ट radiate, but as they come closer and closer, they will start to deflect in order to evade the other charge. और मैंने आपको बताया जो opposite charges हैं, they will find any possible way to the other charge possible. Okay, यहाँ पे उन्होंने आपको उसकी आइडेंटिफाई करने के कुछ पॉइंट्स बताए हैं, you can just read it once, nothing really complicated. Then you have the Xerox एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास जीरोग्राफी आ जाती है, जो कि फोटोकॉपिंग कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मशीन है। Here, what they're showing you is if a drum is exposed to an image of the document to be copied, the dark and light areas of the document produce different. Okay, it's pretty easy that in the sense कि यहाँ पे सिर्फ एक conduction phenomena यूज हो रहा है, that you are using conductors like conductive materials, and you are using magnets, you could say. So you are just uh, you know pulling those conductive materials towards the magnet, and by using this pulling phenomena, वो जो आपका चूना कहलाता है, जो टोनर होता है, वो खींच के आपके पेपर पे लगता है। एंड उसका फिनोमेना उन्होंने आपको बताया हुआ कि यार वो आप लैंप जो है वो कॉपी कर जो ऊपर शूट करता है रेस, और जिस चीज़ को आपने कॉपी करनी है, एंड ऑब्वियसली एज यू नो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो जब वो वापस आती हैं लेंस पे, लेंस वहाँ पे क्रिएट कर देता है उस कंडक्टिव मटेरियल को, इट गिव्स द चार्ज टू दिस ड्रम, और वो ड्रम जो है वो नीचे मैंने आपको जैसे बताया मैग्नेट पुलिंग फिनोमेना को यूज करके उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। सो इट्स प्रीटी इजी।
Okay, I think now we're getting to the real parts where you might find yourself in difficulties. अभी तक मैं सिर्फ आपको just in case brief introductions दे रहा था चीज़ों का. यहाँ पे अब थोड़ा सा advanced material start होता है. Uh, I did tell you about this once. I'll tell you again. Okay, so electric flux is what? Electric flux means per unit area जो आपकी electric field lines है ना cross करेगा. अब electric field line, if you remember, I told you that it's actually nothing. Like it's imaginary. It's just virtual. It's our imagination, but it helps us to identify the magnitude of the effect of those of that charge, electrical charge. यानी डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मैंने आपको बताया कि वो चार्ज डिफरेंट अफेक्ट्स करेगा, लाइक डिफरेंट स्ट्रेंथ्स अप्लाई करेगा, राइट. डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड की फोर्सेस अप्लाई करेगा. तो उसको हमने किस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, हमने वहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस लगा दी. तो ज्यादा फील्ड लाइंस इज इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स फील्ड, राइट. यानी वहां पे आपकी फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी. और जैसे जैसे आप फर्दर जाते जाते हैं तो the number of electric field lines decrease, and so does your force being applied on any given object which you want to observe the effect on. अगर आपको ये बात दोबारा सुननी पड़े तो दोबारा सुने, but try to understand these things. It's very important. Okay, so first we have when the area is held perpendicular. So when the area is held perpendicular, okay, for one thing you need to remember, मैंने आपको शायद पहले बताई थी. This is your formula. This is your formula. Forget about every other crap on this page. This is your formula for finding the electric flux. Okay. Um, it tells you that electric flux is equal to electric field. Okay, electric field's effect, as I said before, electric field effect into whatever effective area is being used here for us. Like, we don't care if the area was this big. अगर हमें इतना सा एरिया मिल रहा है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो हमें ये वाला एरिया मल्टीप्लाई करना है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. ओके, हमें जस्ट ये एरिया चाहिए, दिस एरिया. बाकी जितना भी है ये हमारे लिए यूजलेस है. तो ऑब्वियसली इस तरह पार्ट्स में तो नहीं हम यूज करें. मैं तो कुछ एग्जांपल दे रहा था. असल में क्या होता है, एज द एंगल ऑफ दिस एरिया चेंजेस, द अफेक्टिव एरिया बीइंग यूज्ड चेंजेस. तो यहाँ पे जैसे हमें पता चला कि यार व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, आपके पास ऐसे आ रही हैं. ओके, ये आपका पेज है, ऐसे आ रही है. सो राइट नाउ इट्स हिटिंग कंप्लीट पेज. आपका कंप्लीट एरिया इस्तेमाल हो रहा है. ओके, सो ये फॉर्मूला में किस तरह आपके पास अप्लाई होगा कि आप देखेंगे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बेसिकली इस वक्त क्या एरिया क्या इस वक्त क्या एंगल बन रहा है. इट्स प्रीटी इजी टू सी. यू कैन सी अगर ये पेपर है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, ये आ रही है. ओके, सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट. सो यू सी के आपके पेपर में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड यू विल अप्लाई put this 90 in the cos 90, you will get 1. That means you get the maximum value of electric flux when it's perpendicular, when it's held perpendicular. आपने कुछ भी नहीं परेशान होना. आपने नहीं सोचना कि यार सीधा है तो ज्यादा होगा, टेढ़ा है तो ज्यादा होगा. गोली मार दें टेढ़े और सीधे को. just see that when the page is making, when the area, forget about the page, when the area is making स्पेसिफिक एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपने वो एरिया यहाँ पे पुट कर देना है और आपके पास हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी. सो व्हेन इट्स परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री बन रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ. ओके, तो मैक्सिमम, और आपके पास इट मेक्स सेंस ना, इट्स हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट क्योंकि पूरा का पूरा सीधा हुआ हुआ पेज. और व्हेन द पेज इज पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है उसी की डायरेक्शन में पेज है.
अब सुनने में ऐसा लगता है, जब आप अगर आपके पास सामने डायग्राम ना हो, सुनने में ऐसा लगता है जैसे पैरेलल पे ज्यादा इफेक्ट होगा, बट अगर आप पैरेलल को ड्रॉ करने करें तो आपको एहसास होगा, अगर आपकी ये फील्ड लाइन जा रही है और उसी डायरेक्शन में पेपर पड़ा हुआ है, तो पेज का ये सारा ऊपर का एरिया तो जाया हो गया ना, ये सारा एरिया तो जाया हो गया। सो बेसिकली इट्स द लीस्ट इफेक्टिव। सो क्या होगा, अगर 0 डिग्री बन रहा है तो 0 डिग्री आप अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि आपका जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इट हैज देर इज नो फ्लक्स अवेलेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये भी हो गया। आई थिंक वी कैन मूव। वो ये आप में इसको बस इस चीज में आपको एक चीज ख्याल रखना, यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल व्हाट थीटा इज बीइंग found here. Then you have electric flux to a surface enclosing a charge. So you have uh, a surface, this round ball shiny surface, and you're saying that you placed a charge, and a positively charged. Okay, so you're saying that मैंने एक बॉल के अंदर यार एक चार्ज प्लेस कर दिया, एंड नाउ आई वांट टू सी इसकी सरफेस पे क्या अफेक्ट होगा इसका, इस चार्ज का। ओके, सो व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू टू द सरफेस ऑफ दिस empty ball। Okay, mind you that this ball has a uniform area, right? It is uniformly curving। ये एक स्पेसिफिक कर्वेचर पे कर्व कर रहा है, सो द यूनिफॉर्म जो भी आप पैच यहाँ पे स्टडी करेंगे, इट विल स्टे द सेम थ्रू आउट। ओके, इट विल स्टे द सेम थ्रू आउट। सो हमने दो चीजें यहाँ पे नोटिस करनी, एक तो यह कि हम पैच स्टडी कर रहे हैं और उस पैच का इफेक्ट ही पूरी बॉल का सरफ होगा। ओके, इफेक्ट होगा पूरी बॉल के हर हर सरफेस एरिया पे, वही हो रहा होगा। हमें जस्ट उस पैच से जो हम रिजल्ट्स फाइंड करेंगे, हम वो पूरी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। Okay, what it says is that when you make infinite small patches on this surface, they are of delta A, delta A1, delta A2, delta A3, and the effects on those areas E1, E2, E3 respectively। आपने उन सारे पैचेस के, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय E डॉट डेल्टा ए। ओके, डेल्टा ए इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इस वक्त पूरा एरिया नहीं यूज कर रहे हैं हम, पूरी पूरी बॉल का एरिया नहीं यूज कर रहे, लाइक पूरी बॉल का एरिया यूज नहीं हो रहा। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जस्ट एक स्मॉल पैच का एरिया यूज कर रहे हैं। सो उसको हमने डेल्टा ए का, डेल्टा का मतलब होता है कि स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग। तो डेल्टा हमने एरिया यूज किया, और उसको उस इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम निकल रही है ना बाहर, तो ये, तो हमें पता चला कि अच्छा ई तो सारी जगह सेम 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 है। तो हमने क्या किया, उस ई को हमने सारे को कॉमन ले लिया, राइट, और हमने उसको जो है ना एक ई पुट कर दिया। ये देखिए, हमने उसको एक ई पुट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो एरियाज थे डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, हमने उन सबको प्लस कर दिया। और करते करते हमें पता चला, अच्छा यार ये तो टोटल टोटल एरिया बन गया इस बॉडी का, इस पूरी बॉडी का एरिया बन गया। तो अब हमारे पास यह कंक्लूजन है। एक तो ये है कि ई तो चार्ज से सेम ही निकल रहा था, तो क्योंकि हमें ना कोई यूनिफॉर्म, हम जब तक डिस्टेंस पे जा रहे हैं ई की वैल्यू सेम रहेगी। दैट इज वाई मैंने आपसे यही कहा था, यू हैव टू सी कि आप यूनिफॉर्म एरिया लगेगा। इसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सरफेस एरिया तक आते आते, चार्ज क्योंकि आपने बीच में प्लेस किया, सो सेम एरिया कवर हो रहा है, सो ऑब्वियसली सेम इफेक्ट अप्लाई होगा पूरे के पूरे सरफेस एरिया में। सो ई की वैल्यू आप कॉमन ले सकते हैं। देन यू नो कि जो एरिया है वो सारे पैचेस का आपने ऐड किया, तो टोटल टोटल एरिया बन गया आपकी बॉडी का। ओके, तो टोटल एरिया आपने सरफेस एरिया का जो है, वो उसका आपने उसका आपने फॉर्मूला लगाया टोटल स्फेरिकल एरिया का, 4 पाई r स्क्वायर। हेयर इट इज 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल आपको स्फेरिकल, और ई की आपको वैल्यू पता ही है, इट इज क्या थी हमारी, ये अभी हम पीछे पढ़ के आए थे। ई वाज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ई वाज एफ ओवर क्यू। सो ये आपका क्यू एक रह गया ना,
Q1 Q2 होता है ना, आपका ए क्यू इसलिए रह गया क्योंकि एफ ओवर क्यू है, तो क्यू एक आपका जा चुका है. So you simplified and then you get this way, you get this. So now you basically found the formula for electric flux on a for a surface of a body enclosing a charge. अब हम बेसिकली ये कह सकते हैं, फर्दर हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म ना भी हो, यूनिफॉर्म ना भी हो, as long as you are traveling same amount of distance, this will be the electric flux. Okay, as long as you travel equal distance from that charge, उस बॉडी की सरफेस की जिस भी आप पार्ट तक पहुंचे होंगे, जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया वो सेम है अगर जब तक, तो उसके हर डायरेक्शन में यही फ्लक्स फाउंड होगा. ओके, ऑलराइट, we can go further. Okay, what do you have next? Then you have Gauss's law. Yeah. So what does Gauss's law tells us? It tells us that suppose point charges front at n number, like हमने बहुत सारे charges use किए हैं, वो हैं, तो total flux कैसे found होगा? So अगर आपने n number of charges place किए हैं, so basically you have a body and आपने ढेर सारे अंदर charges play कर दिए. So how do you find the total flux? You add all of the magnitudes of the charges placed inside it, and then you what do? You divide it with the permittivity of the free space of that object. Or mind you that every object will have its own permittivity. So basically, पीछे भी अब हमें ये पता चला that as long as you are in the specific material, the flux will remain the same. और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं, हम जितने मर्जी चार्ज प्लेस कर लें, as long as you remain in a specific object, uh, it will always remain the same for that object. Okay. Then you have application of Gauss's law. So this is so there are three cases we have to study here, right? First, we have intensity of field inside a hollow charged sphere. So in this case, what we see here that is that the sphere is positively charged, okay, from the outside. So the surface is charged. Inside there is no charge available, right? So हम कह रहे हैं कि यार गॉसेस लॉ से हमें बेसिकली पता चला कि यार जब, अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके करके वर्ड्स में बताता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन समझ आ जाए. हमें यार गॉसेस लॉ से ये पता चला that for a specific object, जब आप एक चार्ज अंदर अंदर प्लेस कर देते हैं तो उसका अफेक्ट उसके सरफेस एरिया पे उसकी जो बाउंड्रीज हैं सेम रहता है. ओके, नो मैटर क्या पुट्ठा एरिया है उसका, नो मैटर हाउ वियर्ड द एरिया, द सरफेस एरिया गेट्स, लाइक द शेप ऑफ इट, it will remain the same. The flux, okay, it will remain the same for that object. So what we say now, we're saying कि हम इससे आगे क्या क्या फायदेमंद काम करवा सकते हैं. तो एक ये हमें पता चला कि जब एक बॉडी बाहर से चार्ज है, उसके अंदर क्या इंटेंसिटी होगी फील्ड की. ओके, चार्ज आपने बाहर से किया हुआ है, कोई चार्ज आपने प्लेस नहीं किया हुआ, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज आपने प्लेस नहीं किया हुआ, आपने जस्ट बॉडी चार्ज की हुई है. ओके, बट देयर इज नो, यू डिड नॉट प्लेस अ चार्ज इनसाइड, आपने अंदर कोई क्यू नहीं प्लेस किया. ओके, सो
वी फाइंड दैट अगर आप उसके मजीद अंदर से, क्योंकि बाउंड्री पे तो चलो चार्ज है ना, आप कहते हो यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने बाउंड्री को स्टडी नहीं करना, सो व्हाट वी डू हियर, हम वर्चुअल अंदर एक और नया नई सरफेस बना लेते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं, बॉडी के अंदर बॉडी बना लेते हैं, मिनी बॉडी। हम कहते हैं जो मिनी बॉडी में इफेक्ट होगा वही मेजर बॉडी में इफेक्ट होगा। मिनी बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं हमें पता चला कि कोई अंदर प्ले चार्ज ही नहीं है यार। तो जब कोई चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कैसे होगा? और एरिया तो है नहीं, और एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, राइट? अगर फ्लक्स जीरो है, आपका फ्लक्स जीरो है, आपको यहां से पता चल गया चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं है। तो आपने कहा अच्छा यार, ये आपके पास फॉर्मूला एक जनरल फार्मूला होता है फ्लक्स का, ई डॉट ए। आपने कहा अच्छा, अब अगर फ्लक्स जीरो आ रहा है तो इस फार्मूला के लिए भी ये फार्मूला अप्लाई करो तब भी जीरो ही आएगा। तो आपने इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। आपको पता ये चला यार एरिया तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बॉडी तो एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी बॉडी एग्जिस्ट कर रही हो तो उसका एरिया होता है, चाहे यूनिट एरिया हो, वन एरिया हो, लेकिन यूनिट, लेकिन कोई एरिया तो होगा ना जब कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। तो एरिया तो जीरो नहीं है, इसका मतलब पता ये चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर। इससे क्या हमें फायदा हुआ? इससे हमें ये फायदा हुआ कि हम जो है कहते हैं कि यार अगर एक बॉडी के बाहर चार्ज हो भी, अगर उसके अंदर हमने चार्ज प्लेस नहीं किया हुआ, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इफेक्ट जो है वो नहीं जाएगा, अंदर इफेक्ट जीरो होगा। तो अंदर जो भी चीज है वो शील्डेड है, वो बच गई है उस इलेक्ट्रिक चार्ज से जो बाहर था बॉडी के, सॉरी, जो बाहर था उससे वो बच गई है। ओके। देन यू हैव द सेकंड केस जिसमें वो कहता है कि यार इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब हम स्टडी कर रहे हैं, इन्फिनिट शीट है आपके पास, ये बेसिकली जा रही है इन्फिनिटी तक, हर तरफ जा रही है इन्फिनिटी तक। ओके, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, कभी खत्म नहीं हो रही है। हमने उसका एक थोड़ा सा पार्ट पकड़ लिया, ठीक है, हमने कहा हम इतने से पार्ट को स्टडी करेंगे। अब हम कहते हैं इस छोटे से पार्ट को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, लेट मी जूम इन। ठीक है, हम कहते हैं हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, और हम कहते हैं कि यार ये हमारी, हमने स्टडी करना है like perpendicular to the surface, like this is perpendicular to the surface ना, this is perpendicular to the surface। हम कहते हैं हमने perpendicular to the surface स्टडी करना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं कि अफेक्ट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अफेक्ट ऑफ एनी चार्ज सरफेस और एनी चार्ज। हम इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट स्टडी कर रहे हैं असली दुनिया के लिए। अब हमें पता चला कि अब हमने अगर एक वर्चुअल सिलेंडर प्लेस किया उस शीट के ऊपर परपेंडिकुलरली, जो कि जा रहा ऑब्वियसली, तो अगर तो ये यूं करके बना होता, अगर तो ये सिलेंडर ऐसे बना होता, ऐसे करके बना होता, अगर तो ऐसे करके बना होता तो ये पैरेलल हो जाता, ठीक है। फिर हमें इसका ये यूं करके एरिया स्टडी करना पड़ता, जो भी एरिया, ये वाला एरिया ना जो इसका सर, ये वाला एरिया हमें ये स्टडी करना पड़ता। अभी हम ये नहीं स्टडी कर रहे, अभी हम ये वाला एरिया स्टडी कर रहे हैं, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया स्टडी कर रहे हैं इसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही एरिया जो हमने पैरेलल के लिए फाइंड करना था, ये वाला एरिया जो इसका सर ऊपर का सरफेस एरिया है सिलेंडर का, उसको उसकी पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर, बेसिकली आप पूरा वॉल्यूम ही स्टडी करेंगे आप उसका। ओके, तो लाइक नॉट इन द वॉल्यूम एक्चुअल सेंस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक शो यू कि आपने इस तरह उसको शो किया अपने लिए, जो आप इमेजिन कर रहे हैं आपने उसको वॉल्यूम वाइज ड्रॉ किया। मैं आपको ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आपने वॉल्यूम वाइज ड्रॉ किया। वैसे तो हम सिर्फ ये पार्ट पे पता करना इन पार्ट्स पे पता करना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये जो इसके सरफेस है, तो फिर इनकी तो कोई वो नहीं ना हुई, लेंथ नहीं है ना, तो हम तो सिर्फ ये जो इसकी इसके हेड्स हैं वहां पे स्टडी करना चाह रहे हैं। एनीवेज, तो अब हम कहते हैं कि यार अच्छा हमें हेड्स पे करना है स्टडी कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट आता है परपेंडिकुलरली। तो हमने कहा कि यार
एक हेड पे फ्लक्स ई ए होगा, हमें पता है ये होता है ना, तो टोटल फ्लक्स दोनों हेड्स पे हो गया ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2 ई ए। तो फ्लक्स की वैल्यू आपकी आ गई 2 ई ए, और चार्ज जो है आपका उसको आपने क्या लिख दिया, आपने उसको लिख दिया सिग्मा ए। नाउ सिग्मा इज बेसिकली चार्ज डेंसिटी, if I am not mistaken. Uh, it's been a pretty damn long time since I studied this. Uniform charge density. See, I remember after so many years. So charge density is sigma. Is charge density means per, as I said, density is obviously per unit volume. मैं इसीलिए कह रहा था हम इसको एज अ वॉल्यूम ले रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन ले, बट फिर उस वॉल्यूम में से हमें सिर्फ जो फैक्ट चाहिए वो इसके हेड्स पे चाहिए, तो फिर वो वॉल्यूम का एरिया खत्म, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, बस फिर ये एरियाज रह जाएंगे दो। हमें एट द एंड एरियाज पे, दो एरियाज पे चेक करना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम स्टार्ट जो है वो एज ऑफ वॉल्यूम लेके कर रहे हैं। तो हमें हमें पता चला कि अच्छा इस पूरे वॉल्यूम में हमने कहा चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। सिग्मा ऑन दिस एरिया हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं डेंसिटी इनटू एरिया। हम डेंसिटी इनटू एरिया स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ऐसा पता चला कि पर यूनिट हम डिस्टेंस जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज, अगर मैं आपको बना लिख के दिखा देता हूँ, क्यू ओवर वी इंटू ए। इस वक्त हम बेसिकली ये कर रहे हैं, आपको याद होगा यहाँ पे आपका क्यू ओवर सिग्मा, क्यू ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आना था, हमने उसको इस वक्त कैसे लिखा हुआ है, हमने उसको इस वक्त ऐसे लिखा हुआ है, क्यू ओवर वी इंटू ए। ये क्यों करना पड़ा हमें, अब बनेगा ये यही, ये मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है, राइट। सो ये जो है इसको काट देगा, इसके साथ ये 1 बच जाएगा, तो ये चार्ज पर मीटर बच जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दिस विल बेसिकली लीव यू विद पर यूनिट ऑफ दिस डिस्टेंस। सो बेसिकली ये इस सरफेस एरिया के लिए आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट डिस्टेंस मीटर, अगर आप मीटर मिलीमीटर जो माइक्रोमीटर आप स्टडी कर रहे हैं। ओके ओके, सो व्हाट वी डू नेक्स्ट इज, हम कहते हैं कि अच्छा हमने सिग्मा ए जो है हमारा चार्ज हो गया, और अल्लाह भला करे कि फ्लक्स की वैल्यू हमें पता चल गई है यार, एक अगर हेड पे टू एक ये है, तो दो हेड, दोनों हेड्स पे 2 ये हो जाएगी, राइट। तो व्हाट वी डू नेक्स्ट इज, हम कहते हैं कि यार ई की वैल्यू हमें तो चाहिए ना, ई के चार्ज, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह छोड़ दी, बाकी सब दूसरी तरह ले गए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई, चार्ज डेंसिटी ओवर टू परमिटिविटी ऑफ स्पेसेस, और हमारा जो वेक्टर आ रहा है, इट मींस के वट एवर डिस्टेंस यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज सरफेस, ये आपको ये बता रहा है। बेसिकली अब आप ये समझ सकते हैं कि हमने दो हेड्स पे स्टडी किया और कैसे किया। आई होप यू रिमेंबर दिस। एंड देन यू हैव इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल पे। तो दिस इज बेसिकली आगे आपका कैपेसिटर रहेगा, ये उससे रिलेटेड है। ये सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन एक है चार चार कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के लिए ये आप पढ़ते हैं कि यार अच्छा दो आपके पास चार्ज सरफेस हैं, and one is positively charged and one is negatively charged. You want to study its effect in this region, right? You want to say you're going to study in this region. So आप कह रहे हैं कि यार चार्ज जो है वो तो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार ये दो दो पैरेलल एक दूसरे के सरफेस जा रही हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव 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 चार्ज है। आप कह रहे हैं ये बीच वाली जो जगह है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ अफेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड,
चार्जेस का क्या इफेक्ट, टोटल इफेक्ट क्या है। तो टोटल इफेक्ट हमारे पास, हमने कैसे स्टडी किया, हमने कहा यार हम थोड़ा सा एरिया चार्ज सरफेस में से ले लेते हैं, और उस एरिया, हम उस एरिया को ले जाते हैं अंदर तक जहां तक हमें स्टडी करना है। तो बेसिकली इस साइड पे स्टडी करना है हमें। ओके, इस साइड पे स्टडी करना है। हमने कहा एज द फील्ड है पैरेलल टू द साइड ऑफ द बॉक्स देयरफॉर फ्लक्स थ्रू दिस स्लाइड इज जीरो। सो ये वाली जो दो साइड है आपकी, इनमें तो हो गया जीरो। एक तो है ही आपके चार्ज सरफेस के अंदर, वहां पे आपका कोई इफेक्ट कैसे हो सकता है जहां पे जो चार्ज सरफेस के अंदर ही है। सो इफ is the area of the phase E is the electric intensity in this side, the electric flux to it would be E। ये वो है आपकी जो मैं आपको बता रहा था जिसपे हमें स्टडी करना है। तो हमें पता चला अच्छा उसका उसका फ्लक्स ई ए है, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अगेन चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एरिया एरिया से कट जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विद सिग्मा ओवर। यहाँ हमें पता चला कि यार फॉर एनी टू for any given space which is enclosed, या which is between, enclosed गलत वर्ड है, which is between two charged surfaces, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक जो फील्ड सर इफेक्ट है वो ये होगा सिग्मा और द इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी ओवर परमिटिविटी फ्री स्पेस। ओके, देन यू हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप मतलब क्या लेते हैं यार एक्टिव पे, पहले तो आपको मैं बेसिक समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? Potential means the ability to do something when you can do something. It doesn't mean you will do something, it just means you can do something. It means you have the capability to do something. It means you have the capacity to do something. You have the power to do something. Okay? ये ability to do something जो है इसको हम potential कहते हैं। और अब हम electric potential से क्या मतलब लेते हैं? It means कि कोई charge एक एनी गिवन स्पेस में क्या वर्क डन करने की एबिलिटी रखता है। दिस इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि वो क्या इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है। अब फिजिकल वर्क में, अगर फिजिकल वर्क की बात करें, दुनिया की बात करें, तो आपके पास मैं कहूं क्या पोटेंशियल है वर्क करने की, मैकेनिकल वर्क करने की। दुनिया में तो मैकेनिकल वर्क होता है ना, आप मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं कर सकते। आप मैकेनिकल बॉडी, ये जो आपका हाथ हिलता है ये मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। ये जो आपके किताब को उठाते हैं ये मैकेनिकल वर्क है। मैं कहता हूं आप जरूरी नहीं है कि किताब उठा रहे हो, उठा लें। मैं कहता हूं आप उठाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एंड दिस मीन्स कि आपके पास पोटेंशियल है। यू हैव द मैकेनिकल पोटेंशियल टू डू वर्क ऑन दैट बुक, आप उसको उठा सकते हैं। वो वर्क क्या होगा, दैट वर्क हमें पता है कैसे डिफाइन करते हैं, दैट यू अप्लाई सम फोर्स एंड इट एक्चुअली मूव्स अ डिस्टेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। say there's a book and you apply a force on it, and it moves 1 centimeter, let's क्या quite clearly 1 centimeter। तो F इंटू जो डी है ना आपका, ये F इंटू डी, ये आपका वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क डन। इसमें दो चीजें हैं। दिस, अभी जो एबिलिटी है ना, एबिलिटी, वो क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं एबिलिटी टू डू वर्क। फोर्स तो आपने अप्लाई कर ली, फोर्स अप्लाई करना कमाल नहीं है यहाँ पे, फोर्स आपने अप्लाई कर ली। ये जो एबिलिटी है ना, इसका मतलब ये है कि आप डिस्टेंस मूव करवा रहे हैं इस बुक को। अगर आप ये डिस्टेंस मूव नहीं करवा सकते इस बुक को, तो आपने मैकेनिकल वर्क नहीं किया, आपके पास एबिलिटी नहीं है, आपके पास पोटेंशियल नहीं है ये बुक को मूव कराने की, आपके पास मैकेनिकल वर्क करने की पोटेंशियल नहीं है। तो फोर्स लगाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, चाहे आप फोर्स लगा रहे हो या ना लगा रहे हो, दैट इज नॉट रेलेवेंट। आपके पास पोटेंशियल तब है, हम तब कहते हैं आपके पास मैकेनिकल पोटेंशियल है, व्हेन यू कैन एक्चुअली मूव दैट बुक विद योर वर्क, विद योर फोर्स। इसको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। आप दीवार है, दीवार को आप धक्का लगाएं या ना लगाएं, ठीक है,
वो दीवार नहीं हिल रही, अभी तक आपकी पोटेंशियल नहीं है मैकेनिकल वर्क करने की। अब लेट्स से आप धक्का लगा रहे हैं, आप क्या आपके पास पोटेंशियल आ गई है मैकेनिकल पोटेंशियल? क्या हम कह सकते हैं आपके पास मैकेनिकल पोटेंशियल है? नहीं है। ओ भाई दीवार तो हिली नहीं, डी तो जीरो है, वर्क डन इज जीरो। हाउ डू यू हैव मैकेनिकल पोटेंशियल? यू डू नॉट हैव मैकेनिकल पोटेंशियल। सो इवन इफ आप पूरा दिन खड़े आप उस दीवार पे जोर लगाते रहे, आपका मैकेनिकल पोटेंशियल हमेशा जीरो ही रहेगा। सिमिलरली इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, हम कहते हैं कि एक चार्ज, जो एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज क्यू, वो हर टाइम इलेक्ट्रिक वो हर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होता है हर तरफ। वो हर वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होता है हर तरफ। ओके, बट डज इट हैव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इट डज नॉट हैव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तब है जब ये किसी चीज को एक्चुअली मूव करवा सके, करवाने की ताकत रखता हो। अगर अगर आप किसी चीज को रखो और वो मूव, अगर वो मूव कर जाए, उस पे आपको कोई इफेक्ट नजर आए, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अगर आप कोई चीज रख दो और उसके ऊपर कोई आपको फर्क नजर नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा रहा है हर वक्त, हर वक्त। ये तो 24 घंटे चल रहा है ना, ये इसकी ताकत, ये तो हर वक्त 32 ऑन है, स्विच ऑन है इसका। ये हर वक्त दीवार को धक्का लगा रहा है। मगर ये जब दीवार हिलेगी तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, यहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नजर आएगा। तो जिस एक आपने यूनिट चार्ज ले लिया, यानी उसका वन वन कॉलम जो है इसका चार्ज है, तो आप कहते हैं कि यार मैंने एक और चार्ज यहाँ इसकी फील्ड में अप्लाई प्लेस कर दिया, और वो उस पे आपको अफेक्ट नजर आया, उस पे आपको अफेक्ट नजर आया। कैसे नजर आया? इस चार्ज का जो अपना चार्ज था उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेट्स से इट वाज -1, नाउ +1 इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट। अकॉर्डिंग टू द, आप जब उस पर कॉलम लॉ अप्लाई करेंगे, कॉलम फोर्स अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला पूरा वो Q1 Q2 वाला, तो आपको पता चलेगा डिस्टेंस के मुताबिक, इसकी इनके सेंटर्स के डिस्टेंस के मुताबिक आपको पता चलेगा कि क्या फोर्स अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। इसका अपना चार्ज चेंज हो जाएगा, नेट चार्ज चेंज हो जाएगा, यानी अपना चार्ज तो नहीं चेंज होगा, इसके ऊपर जो नेट चार्ज की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी इस चार्ज की वजह से। ये अफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर। तो अब इसके अंदर अगर तो ये कर सकते हैं, ये तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। हम बेसिकली अब अगर आपको ये सब बेसिक समझ आ गई है, अब हम स्टडी कर सकते हैं, अब हम स्टडी कर सकते हैं इस टॉपिक को। हम कहते हैं कि यार वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, यू वी क्या चीज है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी। आप कहते हैं कि यार अ, एक चार्ज है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया, Q0 चार्ज है, उसको हमने भेज दिया। तो चार प्लेस बी पे उसकी, वो मैं आपको कह रहा नेट चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाती है, मैंने बताया था नेट चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाती है जब उस पे वर्क, जब उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वर्क, उसको जब धक्का लग रहा है, और वो उसके ऊपर इफेक्ट क्या नजर आ रहा है? इफेक्ट ये नजर आ रहा है उसका नेट चार्ज चेंज हो रहा है। नेट चार्ज को आप यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? आप कह रहे हैं उसकी इंटरनल, उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे रहे हैं। आप कहते हैं कि यार चेंज यहाँ पे एक यू ए पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर उसके ऊपर एफ प्लस, सॉरी एफ क्या, क्यू प्लस ने धक्का मारा इसको और ये चला गया ए से बी। ठीक है, ए से बी चला गया। तो हमें पता चला कि आपने अगर ए से बी धक्का लगाया है, तो अब उस पर वर्क डन अप्लाई हो गया, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? लाइक बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो वो जो बी पे आपकी वैल्यू आई है,
उसको आपने ए में से माइनस कर दिया तो आपको पता चला ये टोटल वर्क डन किया क्यू प्लस ने, ये इसने वर्क डन किया, ये वर्क डन किया इस क्यू नॉट चार्ज पे। ये जो यहाँ क्यू नॉट चार्ज है ना, जिसको धक्का लग रहा है बेचारे को, ये दीवार है यहाँ पे, ये हमारी दीवार है, ये बेचारे को धक्का लग रहा है, ये हमारी दीवार पे वर्क डन हुआ है। हमने इधर जहां से स्टार्ट हुए थे उसको माइनस कर दिया, जहां पे पहुंचे हैं वहां की पोटेंशियल एनर्जी से, तो हमें पता चल गया ये वर्क डन हुआ है। अब हम कहते हैं कि डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हमारी पोटेंशियल एनर्जीज थी, ये तो यू बी और यू बी हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल टर्म आपको पता है, हम वोल्टेज को कहते थे चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर नहीं पता थोड़ा सा ब्रीफली बता दें, तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है कि कितना डिफरेंस है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, हाउ मच अट्रैक्शन देयर इज बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस। तो जितना ज़्यादा ये अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बच्चे को बहुत प्यारा खिलौना नज़र आ जाए तो वो थोड़ा जाता है ना, और ज़्यादा प्यारा ना हो तो वो नहीं ज़्यादा जोर से तेज़ी से जाता, वो सोचता है यार जाऊँ ना जाऊँ, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के जाए। ठीक है, तो ये वो उसको समझ लें बहुत प्यारा नज़र आ गया खिलौना, तो वो ना दौड़ा दौड़ा जाएगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ता जाएगा जितना ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। इसके और इसके बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ही तो तेजी से आएंगे, इतनी तेजी से ही आएगा इसकी तरफ। ओके, विद दैट बीइंग सेड, हमें पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डेल्टा वी से कर लिया, और डेल्टा वी हमें पता है डब्ल्यू ओवर क्यू होता है, वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क डन को हमने अभी बोला कि डेल्टा यू है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जीज और बिटवीन टू पॉइंट्स, जो आपको धक्का लगाया था हमने, उससे हमें पता चला कि आपका पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दिस चार्ज इज द यूनिट चार्ज जिसको आप धक्के लगा रहे थे। तो आपको पता चला कि द डिफरेंस बिटवीन द potential, like positive and negative difference between those 2 points is this delta v, and this is the charge आप जिस पे आप धक्का लगा रहे हो। टोटल आपको पता है एनर्जी कैसे फाइंड कर लिया आपने, डेल्टा यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये आपका वर्क डन भी है। पोटेंशियल एनर्जी का आपको एनर्जी जब भी होगी जूल में होगी, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। uh, oh yeah, this part is very यूजफुल। वो कह रहे हैं कि यार बजाय कि आप इनको कैलकुलेट करते हैं, यू शुड टेक वन ऑफ देम एज रेफरेंस, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से आप भेज रहे हैं, ताकि अगले वाले से आप इसको जीरो को माइनस करें तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाए। बस यही बात बताइए उन्होंने आपको यहाँ पर। देन यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको इसकी नहीं समझ तो कोई बात नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई एम बैक। हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि यार अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने स्टडी करना, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम कहते हैं कि यार पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है यार, पहले तो हमें बता दो। ग्रेडियंट का मतलब होता है जब भी आप लाइक
लाइक एक स्लोप ड्रॉ करते हैं, ओके, लाइक ऑन अ ग्राफ when you are moving with respect to certain something, तो आपकी एक एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है जो उस इंडिपेंडेंट के हिसाब से बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, आई डोंट नो, सेम रह रही होती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता चलता है कि अच्छा इस चीज़ का इस चीज़ की वजह से क्या फर्क आ रहा है इस चीज़ पे, जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, ये चीज़ के साथ क्या हो रहा है, ये बेसिकली इसको हम ग्रेड, और ये जो ये होता है ना, ये सारा ग्रेडियंट होता है, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो हम कहते थे यार, ये रेट ऑफ चेंज हमने स्टडी करना है। हम कैसे स्टडी करेंगे रेट ऑफ चेंज? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम एनी चार्ज, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं। पहले तो हम कहते हैं कि यार पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय डब्ल्यू ओवर क्यू, हमें पता ही है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। फिर हम कहते हैं that work done is ft, which you can write as QED। आपको पता है कि any force, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड uh, is given by, it's very ugly, let me make a better one, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय एफ ओवर क्यू। तो हमने कहा कि यार एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। तो हमने कहा कि यार अच्छा फोर्स जो है ना उस चार्ज पे क्या अप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू ई। तो क्यू ई और वर्क डन है तो क्यू एफ डी होता है, क्यू क्यू ई डी ओवर क्यू नॉट। ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब हमें स्टडी करने के पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो चीज़ों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ और इस पॉइंट्स में, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हमने ये स्टडी करना, ठीक है। हम कहते हैं ये कैसे हम स्टडी करेंगे, हमने क्यू क्यू काट दिए, और वो कह रहे हैं कि माइनस साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि दिस एफ इज अप्लाइड ऑपोजिट टू, ओके। सो बेसिकली वी आर सेइंग हियर इज कि एक चार्ज है यार, ठीक है, ये एक फ्री स्पेस है, ये चार्ज है, ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट नहीं बल्कि जीरो पॉइंट लेते हैं, अभी हम जीरो रेफरेंस को और इस पेज को स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ज था, वो यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ तक आ गया, जो आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, वो यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आ गया इस जगह पे, इस क्यू इस क्यू की वजह से यहाँ जो चार्ज था, ये क्यू नॉट जो है ये धक्का बेचारा धक्का लगते लगते वहां तक चला गया। हमने रेफरेंस स्टेट से इस स्टेट तक जगह तक का पढ़ा, ठीक है। हम कहते हैं कि यार ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो क्या असर आ रहा है यार इस पे, और हमने ये माइनस साइन क्यों लगाया, हमने माइनस साइन इसलिए लगाया है कि हम इस वक्त क्योंकि स्टडी करना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर में फोर्स, तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक वर्चुअल फोर्स लगाई है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो यूं करके अप्लाई हो रही है उसके ऑपोजिट एक हमने खुद एक वर्चुअल फोर्स लगा दी उसको बराबर, उसके बराबर। तो क्योंकि वो बराबर है तो यहाँ उसके बराबर, इसका मतलब ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि हम माइनस साइन लेंगे। तो हम बेसिकली ये अगर हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, हम फोर्स क्योंकि यूं ऑपोजिट में अप्लाई कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी। हम बेसिकली माइनस एफ डी ओवर क्यू पढ़ रहे हैं, माइनस एफ डी माइनस क्यू ई बन गया, माइनस ई डी बन गया। माइनस ई डी को आपने कह दिया कि मुझे ई की वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपके पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, डेल्टा वी ओवर डी। यही हम स्टडी करना चाह रहे थे कि यार पोटेंशियल डिफरेंट डिस्टेंस का कैसे चेंज होता है, तो हमें पता गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टेंस के साथ साथ डिवाइड करते हैं, हमें पता चलता चलता है कि यार किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे अफेक्ट कर रही है एक एट एनी गिवन चार्ज जो हमने अपने इसके रास्ते में रख दी। इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस कहते हैं। आगे चलते हैं। Okay, then you have electric potential at a point due to a
पॉइंट चार्ज। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि यार एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से एट अ पॉइंट क्या चार्ज होगा। एक पॉइंट चार्ज है, यानी एक एक छोटा एक चार्ज पड़ा हुआ है, और आपने एक पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। रिमेंबर, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज इट इज कभी स्टडी नहीं किया। अभी तक हम हर दफा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं। हम रेफरेंस स्टेट और और हम और उस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी कर रहे होते थे। अब हमें ये मसला चढ़ा है, हम कहते हैं यार नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जानना है यार इस पॉइंट के ऊपर क्या पोटेंशियल है। ठीक है, ये इस पॉइंट तक लाने के लिए कितनी कितना पोटेंशियल चाहिए, उसके अंदर कितना पोटेंशियल हो तो वो इस पॉइंट तक लेके आएगा। पहले हमें होता था कि यार अच्छा, इस पॉइंट के अंदर और इस पॉइंट के अंदर लाने के लिए जो ताकत चाहिए उनके बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहले पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये था कि एक रेफरेंस स्टेट तक लाने के लिए कितनी ताकत चाहिए और इस ए तक लाने के लिए कितनी ताकत चाहिए, उनको हम माइनस कर देते थे। वी जो वी वो डेल्टा वी आपका जो होता है ना, वो ये होता है, वो होता है कि दोनों के बीच में लाने के लिए ताकत कितनी डिफरेंस है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि रेफरेंस पे कितनी थी और दूसरे पॉइंट पे कितनी, हमें तो चाहिए कि इस प्लेस के ऊपर लाने के लिए एग्जैक्टली कितनी पोटेंशियल होनी चाहिए एक चार्ज के अंदर। इट्स वियर्ड, वो आपको पता चलेगा ये क्यों वियर्ड है और इसके अंदर क्या मसले मसाइल है, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमें पता चला एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आए उस प्लेस तक। ठीक है, अब हम किसी रेफरेंस सेट से जीरो से, रेफरेंस सेट यानी हमारे अब जीरो नहीं, अब हम वो बाहर से लेके आए हैं इस जगह तक जहां पे हमने स्टडी करना। ठीक है, हम बहुत दूर से इन्फिनिटी से लेके आए, इतना कि हम डी मैयर ही नहीं कर सकते। ओके, आप कहते हो इन्फिनिटी डेयर पॉइंट कीपिंग चेंज इन इक्विलिब्रियम चार्ज इन इक्विलिब्रियम द टारगेट कैन बी अचीव्ड using in the form of delta v equal to minus e delta r, provided that electric intensity E remains constant। अच्छा, वो अब ये बात कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वो है इफेक्ट, वो रहेगा कांस्टेंट। और आप जो है इन्फिनिटी से लेके आए चार्ज को, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, डेल्टा ई ओवर डेल्टा वी ओवर आर था ना आपके पास बेसिकली वो डी था, वो डी को आपने लिख लिया डेल्टा आर। आपने डेल्टा आर इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी आप इन्फिनिटी वाले डिस्टेंस को तो ले नहीं सकते, तो आप एक स्मॉल पोर्शन को स्टडी कर रहे हो, आपने उसको डेल्टा आर कह दिया, माइनस ई ओवर डेल्टा आर, और आर बी आपने कह दिया। एक सेकंड है। अच्छा, अब आपको मैं समझाता हूँ हम यहाँ कर क्या रहे हैं। हम यहाँ ये कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम ना यार इन्फिनिटी से लेके आए हैं एक चार्ज को। ठीक है, लेकिन हमने उसको दो डिफरेंट पॉइंट तक स्टडी करना है। ठीक है, अब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नहीं जा रहे, नहीं नहीं नहीं, हम एक पॉइंट से दो पॉइंट पे आ रहे हैं, एक पॉइंट से आगे दो पॉइंट पे जा रहे हैं, बेसिकली तीन पॉइंट से, एक जो यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम आए दो पॉइंट्स तक। अब हम दोनों के ऊपर जो अफेक्ट आ रहा होगा उन दोनों को स्टडी करके हमें पता चल जाएगा कि एक के ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हम कहते हैं यार कि आर बी is the infinity distance and RA is the distance from infinity to RA for to point A, and RB is distance to point B। Delta is the distance between them, वो जो दो पॉइंट्स आप छोटे से स्पेस को स्टडी कर रहे हो, छोटी सी जगह। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि डेल्टा आर इज आर बी माइनस आर ए। अब आप मजे की चीज देख रहे हैं, हम इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस कर रहे हैं। आप मैं इमेजिन करें, मैं आपको समझाता हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आपके पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस वन, ठीक है, और इन्फिनिटी प्लस टू में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क भाई, अभी भी दोनों इन्फिनिटी हैं।
राइट। यहाँ पे आपने लेकिन माइनस ऐड करने से उनके ऐड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इन्फिनिटी रहती है। इन्फिनिटी का मतलब ये जाती रहेगी। हाँ, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी वाली कोई चीज माइनस हो सकती है, क्योंकि फिर आप उनके बीच का फर्क देख रहे हो, फर्क तो इन्फिनिटी नहीं ना हो सकता। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार इन्फिनिटी बी जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी इन्फिनिटी ए से, उसकी वैल्यू हमारे पास कोई आ जाएगी डेल्टा आर। फिर आप ये कहते हैं मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी आपके पास ये आ गए। और फिर आप कहते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है इस फॉर्मूले से, जो एफ ओवर क्यू था। फिर आप कह रहे हैं, अच्छा क्यू आपका बेसिकली आप वो है चार्ज जिस पे आप यहाँ पे एक स्टडी कर रहे हैं कि, ओ सॉरी, जो आपका इन्फिनिटी पे जो वो जो चार्ज है, सॉरी, इन्फिनिटी पे जो आपका चार्ज है, ठीक है, वो क्यू है। फिर आप कह रहे हैं कि फिर आप कह रहे हैं कि हमने क्या किया, एज ए आर बी आर वेरी क्लोज एज अ फर्स्ट वी कैन टेक द अरिथमेटिक मीन टू द इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ये थोड़ा सा स्टूपिड है, इसको आप छोड़ दें। लाइक मीन आपको पता है आर ए प्लस आर बी ओवर टू है, तो ये बेसिकली उसको ही उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है। ये जो अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, ये लिखा था, ये बेसिकली इसी को पकड़ के तोड़ मरोड़ के उन्होंने ये बनाया हुआ है। लाइक यू नो के टू ए जो है, सॉरी टू कह रहा हूँ, आपके पास आर जो है वो आर ए प्लस आर बी ओवर टू है। तो आपने उन जब ज्योमेट्रिक मीन जब लिया तो आपने उनको इक्वल पुट किया, आपके पास आ गया ये आर स्क्वेयर इक्वल्स आर ए इंटू आर बी। ये आप यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में मत जाए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली जो चीज़ समझनी है ना वो आपको ये है कि एक पॉइंट पे आप ये लाइक क्या अफेक्ट होगा, ना कि हम किसी रेफरेंस स्टेट से साथ देख रहे हैं। हमें इन्फिनिटी से आना, लाइक बाहर बाहर चलाना है, बहुत बहुत दूर से आना, ताकि हम उस एक पॉइंट पे स्टडी कर सकें। हम कहते हैं कि यार अ, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है, आपको उसके अंदर फॉर्मूले में आर स्क्वायर की जगह आप कहते हैं मैं आर ए आर बी पुट कर देता हूँ। अब आर ए आर बी दो दो इन्फिनिटी वाले डिस्टेंस हैं। तो आप कहते हैं कि इफ आई यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी से ए हिलेगा, तो वो बेसिकली इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस होगी, तो आपको कोई छोटी वैल्यू ही आएगी। बड़ी इन्फिनिटी में से छोटी इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नंबर आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा। आप कहते हैं कि इससे हमें पता चल गया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आया अभी हमारे पास, ठीक है, आगे चलते हो। हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस में से हम कह देते हैं कि आर बी माइनस आर ए, और लेके कैसे जाता। ओके, देन यू से व्हाट, अब आप बड़ा मजे का पहाड़ आने लगा। यू से दैट बिकॉज वी assume point B assumed to be, so that at A point B assumed to be infinity point, so that B, हमने कहा कि यार एक तो इन्फिनिटी से आ रहा है, हमने बी को कर दिया जीरो, हमने बी को कर दिया जीरो क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रहा है। तो हमारे पास रह गया एक पॉइंट, यही सारा मकसद है इन्फिनिटी से लाने का, कि हमारे पे आके एक को जीरो कर सकेंगे। तो दूसरा जो है वो तो क्योंकि आपके करीब ही है, सो आर ए विल रिमेन एंड देन यू हैव द पोटेंशियल ऑफ वन गिवन चार्ज। अब ये बेसिकली आपको बता रहा है कि एक चार्ज जो है वो पड़ा हुआ, एक चार्ज जो है पड़ा हुआ, ऐसे पड़ा हुआ, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि खून फ्लो करने का खंड। सो
हमें पता चल गया कि अ, हमारा एक चार्ज का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या हो, लाइक क्या पोटेंशियल है कि कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है उस पॉइंट तक ले जाने के लिए, है या नहीं है, हमें वो पता चल गया कि वो पोटेंशियल क्या हो। ये अब माइंड यू के दिस इज नॉट दिस डिफरेंस, दिस इज एक्चुअल पोटेंशियल फॉर the capability or capacity of the charge to do work, not in terms of uh, difference, but in actual potential. Okay, let's go to the next one. Okay, फिर आपके पास क्या, फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है हम कह रहे हैं कि यार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी एनर्जी है, बेसिकली आप ये स्टडी कर रहे हैं। दिस इज इजी, डेल्टा यूज इक्वल्स क्यू वी, आपको पता है क्यू डेल्टा वी है। क्यू डेल्टा वी के अंदर आप चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं, और डेल्टा वी जो है 1 वोल्ट, बेसिकली आप हर चीज़ यूनिट टर्म में ले रहे हैं, तो आपके पास जो है वो मिनिमम, आप कह रहे हैं यूनिट एनर्जी आ जाएगी, कैनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, हाँ बस यही बात है। आपने यूनिट वोल्ट पुट किया, आपने मिनिमम चार्ज पुट किया एक उसका, और आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। एक ही नहीं, आप बेसिकली क्या ये रहे हैं कि यार, से आपको इस थोड़ा सा आसान लफ्जों में बता देता हूँ क्या ये रहे हैं यार, कि एक एक चार्ज जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन अभी हमने लिया हुआ, इसलिए उसका ही तो चार्ज लिया हमने, उससे जो एक एनर्जी है वो आपको 1 पोटेंशियल डिफरेंस की मिलती होती है। जब वो 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो आप उसको उससे आपको वन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको 1.6 × 10⁻⁹ जूल की एनर्जी मिलती होती है। यानी इतनी इसके अंदर पोटेंशियल है, एक चार्ज के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी इतनी पोटेंशियल है काम करने की, वर्क करने की, और उससे आपको इतनी एनर्जी मिल रही है। ओके, देन यू आर जस्ट माई कंपेयरिंग इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मैंने ये लिखे हुए दोनों कांस्टेंट, one is electrical constant, one is gravitational constant. It's you can read it yourself. Next you have Millikan's method. Millikan's method में आप कहते हैं कि जनाब, आप कहते हैं कि यार एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपकी दो प्लेट्स के बीच में आपने वो रख दिए हैं, और उसको आपने आइसोलेट कर लिया है, और आपको आपको अगर आता, इट्स ऑसम। हम ये कह रहे हैं कि यार, ओके, हम बेसिकली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बताने की कोशिश कर देता हूँ कि यार हम कहते हैं कि हमने नोजल से फाइन स्प्रे किया, वो उसकी वजह से चार्ज हो गए, जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो वो ऊपर होल में से गुजर जाएंगे, और होल में से गुजर के वो आपकी स्लिट पे आ जाएंगे, और वहाँ पे आप उनको अपने उस लेंस में से देख सकते हैं। एंड व्हाट इट विल डू इज इट विल लेट यू स्टडी कि यार कि कब कितने चार्ज पे कितने चार्ज पे वो सस्पेंड हो जाएगा हवा में। ओके, तो जब वो सस्पेंड हो जाए, तो आप अगर दोनों का वेट इक्वल हो गया है, अगर वेट इक्वल है तो आपको पता है वेट की वैल्यू मैस की टर्म में
एम जी होती है, और इलेक्ट्रिकल चार्ज की टर्म में क्यू ही होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो चार्ज की का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप बेसिकली पता लगा सकते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट था। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात है। इससे आपने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली। अ, यानी हमारे लिए अब इतनी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है ये, कॉज लोग पहले ही निकाल चुके हुए हैं चार्ज की वैल्यू इस तरह। हमने बस मैस, ग्रेविटी, डिस्टेंस ओवर वोल्टेज उसका जो था चार्ज का वो अप्लाई किया। फिर हमें पता था, हमने एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ की है कि हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है फॉर टर्मिनल, तो स्ट्रोक लॉ ही होता है। टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ यूज़ हो रही होती है। हमने स्ट्रोक लॉ से फोर्स और वेट को इक्वल किया, क्योंकि सस्पेंड हुआ हुआ है, हमें मैथ भी पता चल गया, ये मैथ यहाँ पे अप्लाई कर हमने डाल दिया। और यहाँ से हमारे पास का हम उसका रेडियस भी कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, तो उससे हमारा मैथ्स आ जाएगा, और उस मैथ्स को यूज़ करके हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ढूंढ सकते हैं।